Good morning, children. Today we are going to teach class 10 history, chapter 6. Topic is work life and leisure cities in the contemporary world. In 1880s, Durga Charan Ray wrote a novel, Devagnar Martiye Agman, The God Visit Earth, in which Brahma, the creator in Hindu mythology, took a train to Calcutta with some other gods as Varuna, the rain god, conducted them around the capital of British India. The gods were wonderstruck by the big modern city, the train itself, the large ship and the river Ganges, factories, blazing smoke, bridges and monument and a dazzling array of shops selling a wide range of commodities. The gods were so impressed by the marvels of the teeming metropolis that they decided to build a museum and a high court in heaven. 1880 में एक बहुत बड़े लेखक थे, उनका नाम था दुर्गा चरण राय। उन्होंने बंगाली में एक नॉवल लिखा था, नाम था देवाग्नेर मार्तीय आगमन, यानी देवताओं का धरती पर आगमन। इसमें सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, हिंदू मैथोलॉजी के मुताबिक, पौराणिक मुताबिक, जो सृष्टि के रचयिता हैं ब्रह्मा, और उनके साथ वर्षा के देवता वरुण सभी देवताओं को धरती पर सैर कराने के लिए ले गए हैं। अब वो ले गए हैं उस समय की भारत की राजधानी कलकत्ता में। The rain god conducted them around the capital of British India. ब्रिटिश इंडिया के समय में भारत की राजधानी दिल्ली नहीं थी, बल्कि ये कलकत्ता थी। दिल्ली बाद में जाकर के हुई है। तो देवता ये सब देख करके बहुत ही आश्चर्यचकित थे कि जो आधुनिक शहर है वो कितना बदला हुआ है, कि गंगा नदी में बड़ी बड़ी शिप चलती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जिससे धुआं निकलता है, बड़ी बड़ी सड़कें हैं, जो है बड़े बड़े भवन हैं, और ये सब चीजें देख करके उनका ध्यान जो है विस्मित हो गया। तो उन्होंने सोचा क्या कि जब वो जाएंगे अपने स्वर्ग में, तो अपने स्वर्ग में भी एक ऐसा ही संग्रहालय बनाएंगे। The city of Calcutta in the 19th century was brimming with opportunity for trade and commerce, education and jobs, but the gods were disturbed by another aspect of city life. Its cheats and thieves, its grinding poverty, and the poor quality of housing for many. Brahma himself got tricked into buying a pair of cheap glasses, and when he tried to buy a pair of shoes, he was greatly confused by the shopkeeper, who accused one another of being swindlers. The gods were also perturbed at the confusion of caste, religion and gender identities in the city. All social distinctions that appeared to the natural and normal seemed to be breaking down. शहर में, कलकत्ता शहर में जब वो लोग आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ अवसर तो बहुत ज्यादा है, यहाँ व्यापार के लिए, रोजगार के लिए, लेकिन यहाँ लगा कि सब कुछ होने के बाद एक और चीज है कि यहाँ चोर ठग बहुत ज्यादा हैं, गरीबी भी बहुत अधिक है, यहाँ छोटे छोटे मकान भी हैं। ब्रह्मा ने ये देखा कि लोग एक दूसरे की बुराइयां बहुत करती है, यहाँ सामाजिक असमानता भी है। खुद एक जगह दिखाया जाता है कि ब्रह्मा जब वो अपना चश्मा खरीदने के लिए जाते हैं तो उनसे धोखा होता है, उनको ठग लिया जाता है। जब वो एक जूते खरीदने के लिए जाते हैं तो एक दुकानदार जो है दूसरे दुकानदार के बारे में झूठा बात कहते हैं, सब एक दूसरे की बुराई करते हैं। ब्रह्मा जो है पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कौन सही है कौन गलत है। तो यहाँ देखा जाता है कि उस समय सामाजिक विभाजन बहुत ज्यादा था। Like Durga Charan Ray, many others in 19th century India were both amazed and confused by what they saw in the city. The city seemed to offer a series of contrasting images and experiences: wealth and poverty, splendor and dirt, opportunity and disappointment. दुर्गा चरण राय ने यह भी देखा है कि 19वीं शताब्दी का जो भारत था वो काफी विस्मित करने वाला था। शहर जो थे वो काफी, उसकी छवि इस तरीके से पेश की गई है कि धन तो बहुत था उसमें, लेकिन गरीबी भी उसी तरीके से थी, धूल गर्दे बहुत ज्यादा थे,
शहर की आबादी बहुत बढ़ी हुई थी। अवसर तो थे, लेकिन उन अवसरों का उतना फायदा नहीं था। तो इस सब देख कर करके निराशा होती है। Where city always like the one described above, the urbanization has a long history. The modern city worldwide has developed only over the has last 100 years. Three historical processes have shaped modern city in decisive ways: the rise of industrial capitalism, the establishment of colonial rule over large parts of the world. 200 सालों तक जो ब्रिटिश ने भारत में शासन किया, वो भारत की पूरी तरीके से खोखले करके रख दिया गया। वो अपनी सत्ता को बनाने के लिए बहुत चीजों को स्थापित किया। द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी आइडियल्स, ऐसा है कि राजनीतिक जो विचारधारा होती है वो भी प्रस्तुत किए गए। दिस चैप्टर विल ट्रेस सम ऑफ द प्रोसेस ऑफ द अर्बनाइजेशन. इट विल एक्सप्लोर हाउ द मॉडर्न city emerges and what happened within the city. Characteristics of the city. शहर की विशेषता क्या थी? To begin with, how to be distinguished between cities and the hand and towns and villages on the other. गांव और शहर, आखिर दोनों में फर्क क्या था? Towns and cities that first appeared along river valleys such as Oud, Nipur and Mohenjo-daro. हम ये देखते हैं कि ज्यादातर शहर जो बसे थे वो नदी घाटी के किनारे बसे थे। जो प्रसिद्ध नदियां थी उस समय की ऊर, निपुर और मोहनजोदड़ो। Ancient cities could develop only when an increase in food supplies made it possible to support a wide range of non-food producers. Cities were often the center of political power, administrative network, trade industry, religious institution, and intellectual activity, and supported various social groups such as artisans, merchants and priests. जो लोग नॉन प्रोडक्टिव लोग थे वो शहर में आकर करके अपना काम करते थे। कुछ लोग कारीगरी का काम करते थे, कुछ व्यापारी का काम करते थे, तो कुछ पुरोहित का काम करते थे। तो शहर में एडमिनिस्ट्रेशन था। Cities themselves can vary greatly in size and complexity. They can be densely settled modern day metropolises which combine political and economic functions for an entire region and support very large population, or they can be smaller urban center with limited functions. शहर की आबादी बहुत बढ़ गई थी क्योंकि गांव के लोग काम की तलाश में शहर आकर के बसने लगे थे। छोटी छोटी उनकी स्लम एरियाज डेवलप हो रही थी। This chapter will discuss the history of urbanization in the modern world. We will look in some detail at two modern cities as example of metropolitan development. This first is London, the largest city in the world and an imperial center in the 19th century, and the second Bombay, one of the most important modern city in the Indian subcontinent. जब शहरीकरण की बात हो रही है तो मैं ऐसे दो बड़े शहरों का नाम लूंगा कि एक तो आपको ब्रिटेन में लंदन और इंडिया में बॉम्बे शहर। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द राइज ऑफ मॉडर्न सिटी इन इंग्लैंड। Industrialization changed the forms of urbanization in the modern period. ये शहरीकरण जो है सो पूरी तरीके से मॉडर्न पीरियड को बदल दिया था। However, even it led as 1850s, many decades after the beginning of the Industrial Revolution, most Western countries were largely rural. उस समय के जो शहर बस रहे थे वो दिखने में शहर थे, लेकिन उनकी जो पृष्ठभूमि थी, बैकग्राउंड, वो देहाती थी। The early industrial cities of Britain such as Leeds and Manchester attracted large number of migrants to the textile mills set up in the late 18th century. ये जो ब्रिटेन में लीड्स और मैनचेस्टर था वहां टेक्सटाइल का काम होता था, तो ज्यादातर लोग वहां काम के लिए आते थे। In 1851 more than 3/4 of the adult living in Manchester were migrants from rural areas. 3/4 जो लोग थे 1851 में ग्रामीण इलाकों से वहां जो है सूती कपड़े के मिल में काम करने के लिए आ रहे थे। Now let us look at London. By 1750s, 1 out of every 9 people of England and Wales lived in London. 1750 में 10 में से 9 आदमी इंग्लैंड के जो है वेल्स के लोग जो है लंदन में आ रहे थे। It was a colonized city with a population of about 6,75,000 over the 19th century. ये 19th century में
करीब 6,75,000 आबादी हो गई थी। लंदन कंटिन्यू टू एक्सपैंड, लंदन धीरे धीरे फैल रहा था। इट्स पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड फोरफोल्ड इन द 17 years बिटवीन 1810 एंड 1880। 70 सालों में उसकी आबादी चौगुनी हो गई, इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 million टू अबाउट 4 million। 1 मिलियन से ये 4 मिलियन पे चला गया। द सिटी ऑफ लंदन वॉज ए पावरफुल मैग्नेट फॉर माइग्रेंट पॉपुलेशन इवन दो इट डिड नॉट हैव लार्ज फैक्ट्री। ऐसा नहीं था कि लंदन में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां था जिसमें वो लोग काम करने के लिए आ रहे थे, लेकिन फिर भी वो एक चुंबक की तरह था जो लोगों को अपनी ओर खींचता था। 19th century London, says the historians Garrett Stedman Jones, was a city of clerk and shopkeeper of small master and skilled artisans। लंदन जो था वो क्लर्कों के लिए, छोटे छोटे दुकानदारों के लिए, ये कारीगरों के लिए ये शहर था। ग्रोइंग नंबर ऑफ सेमी स्किल्ड एंड स्वेटेड आउट वर्कर्स ऑफ सोल्जर्स एंड सर्वेंट ऑफ कैजुअल लेबर्स, स्ट्रीट सेलर्स यानी दिहाड़ी मजदूरी पे काम करने वाले लोग, गलियों में घूम घूम कर सामान बेचने वाले लोग, एंड बेगर्स अपार्ट फ्रॉम द लंदन डॉकयार्ड या भिखारी, ये शहर की विशेषता थी। एंड फुटवियर, वुड एंड फर्नीचर, मेटल्स एंड इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंड प्रिसीजन प्रोडक्ट सच एज ए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, वॉचेज एंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेशस मेटल, यानी जो भौतिक चीजें होती हैं हमारी लग्जरी की आइटम्स, वो सारी चीज शहर में अवेलेबल थी। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914-18 लंदन बिगेन मैन्युफैक्चरिंग मोटर कार्स एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स। उन प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो लंदन में कार और इलेक्ट्रिकल गुड्स की चीजें का भी निर्माण होने लगा। एंड द नंबर ऑफ लार्ज फैक्ट्रीज इंक्रीज अंटिल दे अकाउंटेड ए नियरली 1/3 ऑफ द जॉब्स इन द सिटी। शहर में कम से कम जो है आपको जो 1/3 लोग शहर में आकर के बसने लगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मार्जिनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।